Can we start? जी जय जी गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning. Very good morning. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 अभी आज 25th पढ़ना है या 26? 26. 26. ओके. जी तो मैं पढ़ नहीं जी. हाँ, पढ़ो भाई. राजर्षीणाम जनिता शास्ता च उत्पत्तिगामिनाम निगृहीता कलेरेषु भुवो धर्मस्य कारणात्. Translation. The child will be the father of the kings, who will be like sages. For world peace and for the sake of religion, he will be the chastier of the upstarts and the quarrelsome. Purport. The wisest man in the world is a devotee of the Lord. The sages are called wise men, and there are different types of wise men for different branches of knowledge. Unless, therefore, the king or the head of the state is the wisest man, he cannot control all types of wise men in the state. In the line of royal succession in the family of Maharaja Yudhishthir, all the kings without exception were the wisest men of their times. And so also it is foretold about Maharaja Parikshit and his son Maharaja Janmejay, who was yet to be born. Such wise kings can become chastier of upstart and uprooters of Kali or quarrelsome elements. As will be clear in the chapter ahead, Maharaja Parikshit wanted to kill the personified Kali, who was attempting to kill a cow, the emblem of peace and religion. The symptoms of Kali are wine, women, gambling, and slaughterhouses. Wise rulers of all states should take lessons from Maharaja Parikshit in how to maintain peace and mortality by subduing the upstart and quarrelsome people who indulge in wine, illicit connection with women, gambling, and meat eating supplied by regular maintained slaughterhouse. In this age of Kali, regular license is issued for maintaining all of these different departments of quarrel. So how can they expect peace and mortality in the state? The state father therefore must follow the principle of becoming wiser by devotion of the Lord, by chastising the breaker of discipline, and by uprooting the symptoms of quarrel as mentioned above. If we want blazing fire, we must use dry fuel. Blazing fire and moist fuel go ill together. Peace and
can prosper only by the principle of Maharaja Parikshit and his followers. हाँ, तो ये again once again, I mean, if you see it very clearly, Hmm. but all these things are going on. The state is indulging in all these things to earn more and more revenue, है ना? तो it is, there is no point in मतलब at our level to try to improve the society or do anything. Hmm. It is best to concentrate on yourself, read these pious books, and try to get out of this world. And Yeah. Jijaji, हाँ. one more thing is that if we are introspecting, if we are analyzing ourselves only, lots of things are there which we Yes, will. yes, that point is very much correct, Karama. Yes, you go ahead. Yes, please tell me. Huh. So, Jijaji, it is actually we are having lesser time to improve ourselves because a number of things are there which if we want to improve in ourselves, Jijaji, it will take a lot of time and efforts. So first we must focus on that. And the things Yes, which yes, yes. we are not able to control, let it be. That's it. That's it. Yes, You see, you have got an opportunity yes. by reading this purport. You Mm, can get out of these useless things. I mean, mm, by force. You see, mm, for example, so many people are indulging in meat eating. If they can, by reading it, leave that, at least one soul will be slightly better off. mm, If one person can leave drinking, then mm, then it will be better for him. yes, That these the signs of Kali Yuga are in these four things, mm, all these things, and people mm, are nowadays indulging yes. more and more. So you see, only thing is that by our own, now that we have come to know, Mm, about these spiritual matters a little bit, mm, we should by our own conduct, I mean, try mm, to enlighten others, but it is yes. guaranteed. And one should not get bogged down कि भाई मतलब you understand ना, Mm, you can do this much and not more. yes. And Really, the only भगवान ने भी thing. खुद ही कहा हुआ Ah, yes, 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 yes. है ना? तो नहीं पढ़ा पढ़ते हैं, मतलब बेसिकली तो प्रभुपाद जी ने मतलब परपोर्ट जो है ना, जी. ये हैज ट्राइड टू से कि भाई वो सेजेस जो थे, द किंग्स फॉलोइंग हिम वर ऑल लाइक सेजेस. So Mm, sages like kings, that is mm, the people thinking today. So whatever is possible for us at an individual level, so that mm, we should try to see. है ना? yes. Text 27. Mm, mm, तक्षकादत्मानो मृत्युम द्विजपुत्रो पर सर्जितात प्रपत्तस्य उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे. mm, After hearing about his death, which will be caused by the bite of a snake bird sent by a son of the Brahmana, he will get himself freed from all material attachment and surrender into the personality of Godhead, taking shelter of him. mm, This is being predicted by those Brahmanas mm, present at his birth. After his mm, birth, King Yudhishthir has consulted those wise Brahmins who could predict future to tell about Parikshit. And they told mm, him that he will be bitten by a snake bird after he is cursed by a Brahman boy. I mean, yes. also they predicted about him, about his Mm, also. This is what is being told here. mm, Unquote. Material attachment and shaking shelter of the lotus feet of the Lord go ill together. mm, You see, this is very important line. Material mm, attachment and taking shelter of the lotus feet of the Lord go ill together. mm, Which is the biggest challenge, I suppose. No, mm. material नहीं, attachment. Eh? this is not the biggest challenge. This is the truth is there. तो अभी चैलेंज तो वही चीज है जिया जी की. अब जिया जी, जो अगर हमें डायबिटीज में शुगर मना है तो मना है
है ना? वो तो Ah, फिर ये है कि yes. हमें अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। See, the crux of the matter is sense control. यस, एंड Because यही दिस इज material वेरी मच attachment पॉसिबल। also comes from the senses. हाँ, You see, and Lord Krishna is saying, and you see, if you even forget about the spirituality part, हम्म, unless you regulate your senses, you are doomed. There is no yes, doubt about it. I mean, yes, you just said about the diabetic man, sugar is forbidden for him. हाँ, Like that, you see, this is the crux of the matter, that sense control, and that is where the mercy of the Lord becomes very important, because you yes, cannot control senses by artificial means. The only thing you can do is to employ those senses in the service of the Lord. yes, ये वो अब अगेन अगर इफ आई से, तो तुम्हारे को तो ज्यादा अच्छा रियलाइजेशन है इन सब चीजों का. तो मतलब some people are optimists, some people are kind of like that, pessimist. ये जी, इसमें सिंपल सी बात जानते हैं क्या है? Hmm. If I want to become an IS officer, fine. Suppose there is a group, the people wants to become, I want to become an IS officer. So, Hmm. Jia ji, if others are enjoying, if others are playing, if others are watching movies, I will have to study because I will have to achieve my aim. है ना? तो जो हमारा एम है, अगर हमारा एम जो है ईश्वर को प्राप्त करने का है, तो फिर हम अपनी तुलना उन लोगों से नहीं कर सकते हैं जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं। अब एब्सोल्युटली, इसीलिए तो कर्म है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज द, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, यस, और जिया one जी of one मैंने of, one of the ISKCON teachers कर्म है, they are, when they teach the fundamentals of bhakti to very very neophytes, they जी, talk about ABCD, you know. यस, A is for association, हम्म, association of the devotees. B हम्म, is for books. Books हम्म, means Bhagavatam and read Bhagavatam, read Mad Bhagavad Gita. C is for chanting, हम्म, है ना, chanting कर्म है. And D is for diet, मतलब हम्म, you, which should be कर्म है like that. जी, And I don't know, E is for equanimity, which is एटिकेट्स है वो, जो है एटिकेट्स वो etiquette. सदाचार एटिकेट्स। वैष्णव सदाचार. ओके. वैष्णव। चलो आगे पढ़ते हैं, अभी पहले जी, सेंटेंस फंस गए. जी, Material attachment and taking shelter of the lotus feet of Lord go ill together. हम्म, Material attachment means ignorance of the transcendental happiness under हम्म, the shelter of the Lord. हम्म, Devotional service to the Lord while existing in the material world is a way to practice one's transcendental relation with the Lord. And when it is matured, one gets completely free from all material attachments and becomes competent to go back home, back to Godhead. Maharaja Parikshit, being especially attached to the Lord from the beginning of his body in the womb of his mother, was continuously under the shelter of the Lord, and the so-called warning of his death within 7 days from the date of the curse by the Brahmana's son was boon to him to enable him to prepare himself to go back home, back to Godhead. Since he was always protected by the Lord, he could have avoided the effect of such a curse by the grace of the Lord. But he did not take such undue advantage for nothing. Rather, he made the best use of bad bargain. For 7 days, he continuously he heard Srimad Bhagavatam from the right source, and thus he got shelter at the lotus feet of the Lord by that opportunity. हम्म, You see, यहाँ पर कर्म है, मतलब प्रभुपाद जी ने तो पूरा भक्ति के बारे में बता दिया है जी, कि जिसको, अब हम लोग उसको, कोई आदमी पहली बार पढ़ेगा उसको नहीं समझ में आएगा ये सब चीजें हम्म, कि क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी. जी, तो यू सी, यू लर्न बाय, देर आर नो शॉर्टकट्स, हम्म, देर आर नो शॉर्टकट्स. बिल्कुल, भक्ति इज इजी, yet it is मतलब डिफिकल्ट ऑल्सो, हम्म, जिया मतलब. जी, हम्म. इसमें पता है एक बात मुझे और क्या समझ में आती है? हम्म. देखिए, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो हमको सिंपल चीजें संसार की समझ में आती हैं। और यही जब हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं ना
कि जो लोग एक्चुअल में इनलाइटेंड होते हैं उनको कितनी नॉलेज होती है। वो यहाँ से बैठे बैठे रशिया और जापान की बातें बता देते हैं, आपके 50 साल बाद होगा वो बातें बता देते हैं। तो यही जो सिंपल मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ने में इतनी मेहनत लगती है, तो क्या फिर स्पिरिचुअल चीजों को पढ़ने में इतनी कम मेहनत लगेगी जो इतना आउटपुट देता है? बिल्कुल बिल्कुल, यस गोइंग टू कंपेयर। यस यस यस। हाँ मतलब ये जो चीजें हैं, मतलब बड़ा बहुत ही ज्यादा सबलाइम है, मतलब जी, ये बात। जी इसमें एक जो सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है वो देखिए वो क्या कह रहा है कि मटीरियल अटैचमेंट मीन्स ignorance of transcendental happiness under the shelter of the Lord। वो ये नहीं कह रहा जीजा जी कि material attachment simply means sense gratification। वो कह रहा है कि material attachment means ignorance of transcendental happiness under the shelter of the Lord। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल अटैचमेंट से आप एक, मतलब एक एक द ब्यूटी, मतलब जो बेस्ट चीज है उस इन एनी सोल्स कर्म है, जी एटर्निटी कर्म, उससे आप अनअवेयर हैं, तो फिर जी 84 लाख योनि में घूमते ही रहोगे ना। बस 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 वही जी जी। आप जो है ना, जैसे ही कर्म है, मटेरियल अटैचमेंट मींस व्हाट, व्हाट की दैट यू आर गिवन टू योर सेंसेस। जब इफ यू यस आर गिवन टू योर सेंसेस, जी तो फिर दैट मतलब मटेरियल अटैचमेंट इज बिकॉज ऑफ दैट, एंड यस दैट मींस यू आर टोटली अनअवेयर। अगर आप यस अवेयर हो जाए, मतलब सेल्फ रियलाइज को करेंगे, तो फिर आप, तो फिर तो देन इन दैट केस यू आर ऑलरेडी कर्म है, मतलब आगे बढ़ चुके हो ना, तब तो फिर आप यस कम से कम यू विल डू समथिंग अबाउट इट इफ यू आर यस स्टार्ट, इफ यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर, यस जी है कि ना? वी विल, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद, मतलब हम लोग ये कर रहे हैं क्या यहाँ पर। यस जी एंड ये जो है ना, इनका जो 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 तुमने पढ़ा ना कि, बताइए, महाराज परीक्षित जो थे, वो, उनको पता था कि मैं भगवान के प्रोटेक्शन में हूं, आई नीड नॉट डाई, हम्म नीड नॉट डाई, यू नो, एंड yet he chose कि भाई दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, अदरवाइज कर्म है आई विल बी स्टक हियर। क्योंकि वो राज्य, तो वो राज्य को एंजॉय कर रहे थे उस टाइम में, जब वो यस गए थे जंगल में शिकार करने, वो क्षत्रिय धर्म का राजा का वो कार्यक्रम कर रहे थे, उनको हम्म लगी प्यास, और वो एक सेज थे जो तपस्या में लीन थे, उनके साथ वो, मतलब ही गॉट इनटू ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम, ही गॉट इनटू, ही वाज गिवन इनटू सेंसेस। उनको काम क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, और उन्होंने मरे हुए सांप को उठा के उनके गले में डाल दिया, सेज के। उनके बच्चे ने देखा तो फिर बस, वो तो उसने तो उठा करके पानी, जल लेकर के हाथ में उसने कर्स कर दिया। हम्म बट यू सी, परीक्षित immediately came to his senses, हम्म immediately। This is जी what is the great thing about being spiritual, that you, there is no, जब परीक्षित जैसा आदमी, जिसने कि भगवान से को जिसने देख लिया है वूम में ही, वो आदमी अगर क्या नाम है, इफ ही कैन बी गिवन टू सेंसेस, सो हम लोगों को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम भी क्या नाम है फंसेंगे बीच बीच में, जी लेकिन अगर हम ये करते रहेंगे तो महाराज परीक्षित जैसे हम निकलते भी रहेंगे। जी ये सबसे बिल- बड़ी बात है इस बीइंग स्पिरिचुअल से, ये है कि यू विल बी एबल टू कंट्रोल द सेंसेस इन द सेंस, मतलब बैक फ्रॉम द डिवोशनल सर्विस, हम्म instead of we you trying to use मटीरियल, मतलब क्या नाम, वो कहते हैं ना सटल, मतलब जो जो हमारे बॉडी के ग्रॉस बॉडी का हम्म एक पार्ट है, ग्रॉस पार्ट है, एक है सटल पार्ट। तो हम्म सटल पार्ट में क्या नाम है, यू सी, ग्रॉस पार्ट में तो ये पांचों चीजें हैं, वो क्या नाम है, हम्म वाटर, फायर, हम्म ईथर एंड ऑल दैट। एंड देन यू सी माइंड, मतलब देन माइंड क्या नाम है, दिस थिंग, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये सटल पार्ट है। हम्म माइंड से अगर आप, और ग्रॉस सेंसेस जो है ग्रॉस पार्ट का है, ग्रॉस बॉडी का पार्ट है, माइंड से अगर आप कंट्रोल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये हम्म ना बार बार ये एम्फेसाइज हम्म कर रहा है।
है ना। तो ये जी जो है ना, इसीलिए इसको साइंस कहते हैं। मेरे को भी नहीं समझ में आता था कि भाई हाउ इट इज साइंस, इट इज वेरी लॉजिकल, मतलब ये अब वरुण तो बताते रहते थे हमको, लेकिन हमें नहीं समझ में आता था। यही क्रम है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा आई एम गेटिंग ए हैंग ऑफ इट, यू नो। हम्म जी जी। एक्चुअली मैंने एक बंदे का सुना था, उसने प्रैक्टिकल ये चीज बताया था कि उसके मन में बहुत से लोगों को सुनने के बाद ये इच्छा हुई कि क्या मैं 10 दिनों तक वाटर फास्ट रह सकता हूँ। है वो मैं क्या कर सकता हूँ 10 दिनों तक? 10 डेज तक वाटर फास्टिंग। अच्छा अच्छा, जो 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 निराजल। हाँ, ठीक है, निराजल व्रत, हाँ। उस हाँ, बंदे ने पहले बताया कि पहले तो मुझे ये चीज इम्पॉसिबल लगती थी, फिर मैंने इस चीज के बारे में सोचना शुरू किया, फिर मैंने उस चीज के बारे में बुक पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने उस चीज के बारे फिर उस बंदे ने उस चीज के बारे में विजुलाइज करना शुरू किया। और जीजा जी उसकी एक शर्त ये भी थी कि जब मैं 10 डेज का वाटर फास्ट रहूंगा तो मैं अपनी रेगुलर लाइफ को एकदम वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं खाना खाने के बाद जीता हूँ। जिया जी दिस वो उस बंदे का पूरा मैंने सुना था। उसने बोला कि दिस प्रोसेस टुक अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स टू प्रिपेयर माई सेल्फ। और जिया जी उसके बाद वो एकदम नेचुरली करने लगा और कहने लगा कि मैं अपने अब कभी भी जैसे मान लीजिए 10 डेज का उसने कर लिया, उसके बाद कभी भी उस तरह के अगर विचार आते हैं तो वो कहता है कि मेरी भूख अपने आप मर जाती है। तो ये जी मेरा भाई कहने का भाई ये जो चीज है ना, ये जी इस तरह के बड़े बड़े सिद्ध वगैरह हुए हैं। जी और सिद्ध सिद्ध वगैरह जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी में बड़ा, मतलब भगवान ने भी कई बार कंडेम किया है। जी ये सब बेकार की, मतलब आई विल हाँ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स की क्या नाम है, टाइप का चीज इज, मतलब देन वी विल अगेन गोइंग इनटू ये आपको भगवान की मटेरियल तरफ टाइप। नहीं ले जा रहा है ना ना, ना ना, ये ये सेक्रीफाइस जो बिल्कुल है कर्म ये है ये जी भगवान, भगवान की मतलब तरफ ले हाँ, जा रहा इट शुड बी जी जी, डिलीटेड मैं फ्रॉम ये नहीं आवर कह माइंड। रही जी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह हम्म। रही हूँ कि जैसे मान लीजिए उस बंदे ने ये चीज करी, मुझे 10 डेज का वाटर फास्ट नहीं रखना है। मेरा कहने का मतलब है जीजा जी कि हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर एनीथिंग डिफिकल्ट वी कैन डू लाइक दिस, ये मैं कह रही हूँ। ओ यस, कैन माई माइंड यस। सी वंस अगेन, यू नो, फिर अगेन कर्म है, वी आर थिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बताइए क्यों। मतलब वो उसको, अब हमें बिल्कुल ही डायरेक्टली भगवान के पास पहले जाना चाहिए, जी बस। जी। बस हम्म उसका पीरियड, मतलब हम्म, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब ये कि माइंड से कर्म किसी चीज को कंट्रोल करेंगे, और इस तरह से हम माइंड से मतलब भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगी। नहीं जी जी, अब जैसे मान लीजिए किसी को नॉनवेज खाने की आदत है ना, मान लीजिए, और उसको छोड़ना है तो फिर वो कैसे छोड़े। ये बिल्कुल कर्म है, ये हम लोगों का तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी जी। हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने माइंड से नहीं छोड़ा है मीट, अच्छा हाँ, तो माइंड से माइंड नहीं से छोड़ा है शराब नहीं छोड़ी है। ना। हम्म। हमने कर्म है भक्ति से ऑटोमेटिकली भक्ति छूट करते गई, करते वो कब छूट गई पता भी अब नहीं तो लगा, पता भी मतलब नहीं एक्चुअली चला, में वी कॉन्शियसली नेवर रियलाइज। कॉन्शियसली नहीं सोचा। यस। ओके। यस, ये यस, अच्छा नेवर अच्छा। कर्म, आई एक्चुअली विल नॉट सीरियसली सब्सक्राइब टू दैट। कॉन्शियसली, हाँ ओके। कॉन्शियसली हम लोगों ने कभी नहीं ऐसा कोई प्रिपेयर किया कि नहीं हमको ये मीट खाना छोड़ना है हाँ या ये और पहली ड्रिंकिंग बात, छोड़नी दूसरी है। चीज ये है कि जस्ट यूट्यूब या इस टाइप के ऑटोमेटिकली जस्ट लिटरेचर हैपन। में ना, ये जी। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके। रीड अबाउट मटेरियल कर्म स्टफ, दिस इज अच्छा अच्छा। मटेरियल स्टफ। हाँ, हम्म। बिकॉज आज की डेट में तो जो यूट्यूब है ना, जी। इट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ द सोसाइटी। सोशल हम्म। मीडिया इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडिविजुअल्स। इससे अच्छा। बड़ा बच के रहना चाहिए, और ऑथेंटिक लोगों को ही इफ एट ऑल सुनना चाहिए, अदरवाइज अच्छा बाकी अच्छा। लोगों में। ओके। हाँ भाई, मैं तो यही समझता हूँ। ठीक चलिए ठीक। नेक्स्ट इसमें एक क्रम है, चीज मैं वरुण, इफ यू आर इन ए पोजिशन यू कैन रीड टू। हाँ मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। इसमें एक चीज जो पापा आप कह रहे थे वो बड़ा एक बड़े ही ससिंक्ट वे में वो स्वामी रोमपदा स्वामी ने बड़ा अच्छा कहा था कि भाई यू सी कोर्स करेक्शन इज लॉर्ड कृष्णा। हम्म हम लोग का माइंड कई कई बार गलत या हमसे कभी सेंसेस मटेरियल मोड्स के कंट्रोल में आके हमसे कुछ गलत हो भी जाता है, उसके बाद जो कोर्स करेक्शन है दैट इज लॉर्ड कृष्णा। कैन यू बिलीव, जो लॉर्ड ना कृष्णा बड़ा बता उन्होंने दिया अच्छे से ना, कहा था। हाँ है उन्होंने ना। मेरे को बड़ा अच्छा और लगा था एंड आई कोई स्टक विद तरीका इट नहीं है ये जो, दिस इज द कि मतलब बेस्ट। कि
कभी कभी जैसे परीक्षित महाराज का पापा बता रहे थे ना, तो मुझे वही दिमाग में आ रहा था कि भाई उनसे जैसा सिद्ध पर्सन भी, मतलब उनसे गलती हो गई मटेरियल मोड से या सेंसेस से, लेकिन देन उन्होंने जो कोर्स करेक्शन किया, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। उन्होंने श्रीमद् भागवतम बैठ के सुनी, एक्सेप्ट किया उन्होंने उस श्राप को, दैट इज लॉर्ड कृष्णा, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। ऐसे ही अर्जुन भी चैप्टर 1 में, मतलब ही हैड कंप्लीटली फॉलन, but then the course correction, by the end of the 18th chapter he was able to course correct, he became fully motivated and he fought and prosecuted the war. So that is Lord Krishna। मुझे बड़ा अच्छा। अच्छा लगा था। एक एक चीज और और वो भी है, सिर्फ क्या नाम है कि बड़ा यार डेंजर है। अगर परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल्स आप देखें, हम्म। ही वॉज ए गृहस्था। अच्छा, अब उनकी गलती हो गई, बट वो इतने पहुंचे सिद्ध थे कि वो मतलब उन्होंने तुरंत जो है ये कोर्स करेक्शन, इतना बड़ा सेक्रीफाइस कि वही उन्हें ही एक्सेप्टेड व्हेन स्टिल हैड द पावर टू रिवर्स दैट। अब आप देखो, हम ही लोग हैं। अच्छा, अब कहीं ना मतलब रह तो मटेरियल वर्ल्ड में ही रह रहे हैं, जी जी। तो डे टू डे हमारी लिविंग जो है इज विद द मटीरियलिस्ट। और अब मतलब वी हैव गॉट दीज रिलेशंस, वाइफ का रिलेशन है, चिल्ड्रन का रिलेशन है, ऑल दीज रिलेशनशिप्स, दे दोज रिलेशनशिप्स आर मटीरियल। एंड उसमें जैसे ही परेशानी आती है, तो हम लोग जो न्यूफाइड डिवोटीज हैं, वो भी अगर स्ट्रेस में आते हैं तो उनके अंदर में भी यही टेंडेंसी आस आएगी कि भैया भगवान से फिर वो आरतो के मतलब उनसे मांग लो यार, क्या नाम है कि इस मुसीबत से निकालो मुझे, इंस्टेड ऑफ कीपिंग देयर पर्पस सोलली फिक्स्ड फॉर, क्या नाम है, मतलब अटेनमेंट ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए भगवान जब हैं, जैसा बार बार वो कहा जाता है ना कि भगवान कृष्ण बड़े डिफरेंट हैं, वो फिर जो है जब देखते हैं कि ये डिवोटी जो है ना, ये ही इज ए सीरियस गाय, तो फिर वो उसको और वो रिलेशनशिप्स भी खत्म करवा देते हैं। हम्म। यू सी, वो रिलेशनशिप्स वो हमें नहीं पता कैसे करते हैं वो, बट वो रिलेशनशिप्स खत्म करा देंगे। वो मटेरियल, वो तुम्हारा जो जिस चीज से तुम्हारा अटैचमेंट है उसको खत्म करवा देंगे। तो ये भी मतलब ये चीज है, मतलब ही इज एब्सोल्यूट इन दैट सेंस। बट चूंकि ये वरुण ने तो जो बात कही थी वो बड़ा मतलब है कि को यही पर जो है ना, हम जितना ही शरणागति में जाएंगे, उतना ही फास्टर एंड फास्टर वी विल बी कमिंग आउट ऑफ दीज इल्यूजन्स। हम्म। मुझे वो जैसे आपका ज्यादा अच्छा लगा था मौसी की, भाई हम रिजल्ट से नहीं कैप गैदर कर सकते कि हमारी भक्ति कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो हम्म। रिजल्ट्स को, चाहे रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, वी हैव टू गो ऑन डूइंग भक्ति किसी तरह। तो ये जी। आज ये कब तो कहा था, आज का है? ये है नहीं, बड़ी अच्छी पहले बात, कभी कहा था, पीछे दो दो तीन बहुत ही दिन अच्छी पहले। बात है भाई। मे बी आई डिड नॉट नोटिस इट, तो वो दैट्स ज्यादा व्हाट कैन अच्छा आई था। रिमाइंडिंग। यस, वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट द रिजल्ट, हम्म। we should steadfastly, single mindedly just continue to do। ये माया के अटैक होते रहेंगे भाई, हम्म। ये बड़ी कौन सा पक्की। पढ़ना है? हाँ, ये पढ़ना है टेक्स्ट 29। 29 छूट गया है। 29। इति राज्ञा उपादिश्य विप्रजातका कोविदा लब्धा पाचिता यः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। ये ट्रांसलेशन। जी 28 हम लोगों ने कर लिया। नहीं 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 किया भाई, सॉरी, हाँ। 28। ठीक। 28 करना सॉरी है। सॉरी 28। सॉरी। कोई बात नहीं। 28। जिज्ञासितात्मा यथार्थो मुनेर्व्याससुताद् असौ हित्वेदं नृपा गंगायं यस्याति आधा कुतो भयम्। Translation. After inquiring about proper self-knowledge from the son of Vyasadeva, who will be a great philosopher, he will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. Purport. Material knowledge means ignorance of the knowledge of one's own self. Philosophy means to seek after the right knowledge of one's own self or the knowledge of self-realization. Without self-realization, philosophy is dry speculation or a waste of time and energy.
Srimad Bhagavatam gives the right knowledge of one's own self, and by hearing Srimad Bhagavatam, one can get free from material attachment and enter into the kingdom of fearlessness. This material world is fearlessness. Its Fearfulness. prisoners are all. Hmm? This material word is fearfulness. Oh, sorry. This material world is fearfulness. Its prisoners are always fearful as within a prison house. In the prison house, no one can violate the jail rules and regulations, and violating the rules means another term for extension of prison life. Similarly, we in this material existence are always fearful. This fearfulness is called anxiety. Everyone in the material life, in all species and varieties of life, is full of anxieties, either by breaking or without breaking the laws of nature. Liberation or mukti means getting relief from these constant anxieties. This is possible only when the anxiety is changed to the devotional service of the Lord. Srimad Bhagavatam gives us the chance to change the quality of anxiety from matter to spirit. This is done in the association of a learned philosopher like the self-realized Shukadev Goswami, the great son of Sri Vyasadeva Maharaj, the great son of Sri Vyasadeva. Maharaj Parikshit, after receiving warning of his death, took advantage of this opportunity by association with Shukadev Goswami and achieved the desired result. There is a sort of imitation of this reciting and hearing of Srimad Bhagavatam by professional men, and their foolish audience thinks that they will get free from the clutches of material attachment and attain the life of fearlessness. Such imitative hearing of Srimad Bhagavatam is a caricature only, and one should not be misled by such a performance of Bhagavatam Saptaha, undertaken by ridiculously greedy fellows to maintain an establishment of material enjoyment. जैसे इसमें भी ये दे आर पॉइंटिंग आउट राइट कि मतलब भी ये इससे जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज और डिवोटीज भी मतलब somebody who is very serious about this, somebody who is वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. अगर आप जैसे फॉर इंस्टेंस भाई आप अपना टाइम भी लगाइए, राइट, आप अपनी एनर्जी भी लगाइए, टाइम एनर्जी मनी वॉट एवर, सब चीजें अपने रिसोर्सेज लगाए. टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स, और उसका फ्रूट मतलब उसका आपको कुछ मिला भी नहीं तो क्या फायदा है भाई. तो लेकिन वो सिर्फ आप एक डिवोटीज जो हैं उन्हीं के साथ टाइम लगाना ही यूजफुल है, क्योंकि अच्छा वो लोग फिर बड़े दे आर वेरी सोबर अबाउट दीज थिंग्स. सोबर की इन द सेंस कि एक तो वो खुद कर रहे हैं. अच्छा फिर उनको मटेरियल लाइफ के बारे में भी दे डोंट हैव एनी इल्यूजन्स अबाउट मटेरियल लाइफ कि भैया बड़ा कुछ करके हैप्पीनेस मिल जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा. दे आर मोर जैसे वो स्थिर, जैसे कहते नहीं वो जो भगवत गीता में कि स्थित प्रज्ञ, तो स्थिर बुद्धि का ना वो डिस्ट्रेस में बहुत परेशान है ना हैप्पीनेस में बहुत जुबिलियंट है. बिल्कुल स्थिर है कि भाई ये दोनों ही चीजें भगवान की मर्जी है. एंड इट इज अ वेरी वेरी टफ थिंग, इट इज नॉट. लेकिन ये मैंने देखा है कि मेंटली नहीं पॉसिबल है ये, बिकॉज माइंड जो है ना, माइंड के अपने अलग शॉर्टकमिंग्स हैं. जैसे क्योंकि बताया कि सेंसेस, सेंसेस से ऊपर है माइंड, माइंड से ऊपर है इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस से ऊपर है सोल. तो इसलिए माइंड की बड़ी लिमिटेशंस हैं. लेकिन ये तभी पॉसिबल जो समझ में आता है कि जो भगवान, जैसा मुझे भगवत गीता में बार बार पढ़ता रहता हूँ 3rd चैप्टर में, डेलिबरेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जैसे जो हम लोग कर रहे हैं, डेलिबरेटली रोज सुबह उठ के इसको पढ़ रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी डेलिबरेटली भगवान से टच करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे ही हो पाएगा, इससे आपका रीअलाइनमेंट क्योंकि होता गीता का रहेगा. जो 3rd वर्ष है ना, ये बताएगा यही चीज एग्जैक्टली. डेलिबरेट हम्म ये वरुण, यहाँ पे एक सेंटेंस जो आया है जो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि महाराजा परीक्षित आफ्टर रिसीविंग वार्निंग ऑफ हिज डेथ टुक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे वर्ड अपॉर्चुनिटी देखो कैसे यूज किया गया है ना. अपॉर्चुनिटी. टुक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी बाय एसोसिएशन विद सुखदेव गोस्वामी एंड अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. अब अगर डेथ को अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है वरुण, तो कितना बड़ा वो है. ये एक्चुअली आप जो बहुत अच्छा आपने पकड़ा, ये एक्चुअली
हर समय जब हम पे एक प्रलय आती है, कोई भी परेशानी आती है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू द लॉर्ड और कनेक्ट टू द मटेरियल सॉल्यूशंस। ये आपके ऊपर है। अच्छा, ये भी स्वामी रोमपदा स्वामी बता रहे थे, मटेरियल प्रॉब्लम्स के मटेरियल सॉल्यूशंस जो हैं वो टेम्पररी हैं। यू कैन ओनली हैव स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस जो हैं, यू हैव टू लुक एट द स्पिरिचुअल। क्योंकि जैसे हम लोग पूरे टाइम मटेरियल प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, वो आ ही रही हैं, चाहे आप डिवोटी हो चाहे ना हो चाहे कुछ भी है, वो तो आ ही रही हैं। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आध्यात्मिक मेरे माइंड एंड मेरी बॉडी से, आधि भौतिक दूसरों के साथ इंटरेक्शन से, और आधि दैविक कोविड और ये नेचुरल प्रलय, ये तो आ ही रहा है। ये तो आ ही रहा है, बट इसके स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस ही हमको देखने चाहिए। देन ओनली, जो ये अपॉर्चुनिटी को मैं इस तरह से रीड करता हूँ, इट्स द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू लॉर्ड कृष्णा। ये मैं लिख हार्ड रहता है, बट कई बार हो भी पाता है कि मतलब एवरी टाइम देर इज अ क्राइसिस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू लॉर्ड कृष्णा, to get बिल्कुल। intelligence from him. Jnanam apohanam cha, he can give the knowledge. So, but yes, आपने अच्छा पकड़ा। जी। एक्चुअली यार ये परपोर्ट जो है ना, ये वाला इस मतलब जो है आज की रीडिंग जी। में, इसके ऊपर 1-1.5 घंटा भी डिस्कशन हो सकता है। ईच एंड सेंटेंस जो है ना इसके अंदर में, ये ये प्रभुपाद जी ने तब लिखा है व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू द हाईएस्ट क्रम है। मतलब वो जो थे, एक तरफ तो उनके गुरु की आज्ञा थी जिसको मानना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे। दूसरे साइड में वो ही वॉज मतलब इन सच ए कंडीशन इन राधा दामोदर टेम्पल। और वहां पर आप देखो ना, एक ही एक सेंटेंस जो है ना इज फुल ऑफ मटेरियल नॉलेज मीन्स इग्नोरेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ। ये तुमने पकड़ा था, ठीक है ना। जी। देखो पूरा फिलॉसफी के बारे में बता दिया उन्होंने। फिलॉसफी मीन्स टू सीक आफ्टर द राइट नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ और द नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बाकी ये जो फिलॉसफी वगैरह कॉलेज यहाँ वहाँ पढ़ा रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है। That is a sheer waste of time. This is what he is saying here. Without self-realization, philosophy is dry speculation और waste of time and energy. जितनी बकवास है ना फिलोसफी, वो कह कह करके डिश आउट करी जा रही है ना। यस। में भी एक वन ऑफ द क्या नाम है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है फिलोसफी, है ना। तो वो सब बकवास है क्या नाम है, जिसके अंदर में कि ऑल दोज क्या नाम है वो जो ये उल्टे सीधे वेस्टर्न फिलोसोफर्स सो कॉल्ड इन्वर्टेड उसमें उनको पढ़ा रहे हैं। श्री अब देखो आप, जब जब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कौन सी फिलोसफी है ये बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम गिव्स द राइट नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ, एंड बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम वन कैन गेट free from the material attachment and enter into the kingdom of fearlessness। आप देखो ना यहाँ पर बता रहे सेल्फ रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, कि यू विल एंटर इनटू किंगडम ऑफ फियरलेसनेस। You see, this is what he is saying here. Each and every sentence is very, very potent. ये फियरलेसनेस को जरा डिफाइन करिए। Just the word itself is fearlessness. एंजाइटी है आपको, तरह तरह की एंजाइटी है। ये तो माइंड जो है ना, तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, दूसरे का माइंड कैसे काम करता है ना। माइंड जो है ना वो किस तरह से काम करता है वो नहीं पता। फ्यूचर ऑफ अननोन, मतलब फियर ऑफ अननोन। एंग्जाइटी कहाँ से आती है, फियर से आती है। फियर तो है ही है ना मटेरियल वर्ल्ड में, बिल्कुल है। अल्टीमेट डेथ का तो फियर है ही हाँ, बिल्कुल। है कि नहीं। तो वो जो है ना मतलब फियरफुलनेस और फियरलेसनेस, ये तो मतलब बड़ी कि जो फियरलेसनेस हाउ मतलब फियरफुलनेस डिफिनीशन इन इज इन द वर्ल्ड इटसेल्फ। जैसे अब कहा जब डिफाइन ए सर्कल, वो बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो देन देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सर्कल, द सर्कल इज दिस ओनली। तो फियरलेसनेस और फियरफुलनेस ये जो है ना पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है ही है। तो में ये कह रहे हैं एंटर इनटू द किंगडम ऑफ फियरलेसनेस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द किंगडम ऑफ फियरलेसनेस, जहां वहां पर की मृत्यु का और क्या नाम है मतलब वो चीज खत्म हो जाती है। यू आर ऑलवेज इन द मतलब यू आर विद द सुप्रीम लॉर्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं।
और ये किंगडम ऑफ फियरलेसनेस इट इज पॉसिबल इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो. सर्टेन रियलाइज सोल्स इट इज पॉसिबल. उनको नहीं पता तथा देहांतर प्राप्तिर, है ना, है धीरस तत्र न मुह्यति. मतलब कि जो जो है ना, जिस तरह से क्या नाम है, देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जो जिसको ये श्लोक समझ में आता है कि जिस तरह से बॉडी जो है कौमारम यौवनम जरा इससे आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही देहांतर प्राप्ति हो जाती है. वो क्या नाम है, वो दूसरा देह मिल जाता है, खत्म, बात, केस क्लोज. जब ये आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आपको तो फियरलेसनेस काफी वहीं पर दूर हो जाएगी. दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फियरफुलनेस. अब इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना यार. Its prisoners are always fearful as within a prison house. As within a prison house, this body is a prison. He is comparing this body to be a prison. In the prison house, no one can violate the jail rules and regulations, and violating the rule means terms of extension of the prison life. ये भी बताइए, मटेरियल लाइफ में आप इस प्रिजन हाउस में आपने गड़बड़ करी, पाप किए, तो आपको यार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा आपको जाना पड़ेगा. मतलब दूसरा जेल टर्म है, मतलब यू विल बी गिवन आइसोलेशन वाली सेल, और यू विल बी गिवन है मतलब फर्स्ट क्लास जेली, उसका क्या नाम है, मतलब प्रिजनर का स्टेटस. स्वर्ग लोक मिल जाएगा आपको, चलो भैया, बड़ा आपका क्या नाम है, वहां पर बैठ करके अपना गार्डनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे उस जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे आप, स्वर्ग में भी जाने पे, ब्रह्मलोक में भी जाने पे. Similarly, we in this material existence are always fearful. We have this fearness is called anxiety. ये बताया ना उन्होंने यहाँ पर. Yes. Everyone in the material life, in all species and varieties of life, is full of anxiety, either breaking or without breaking the laws of nature. ये सारा बता दिया उन्होंने. इसको कभी पढ़ना आप पूरा, इसको दोबारा, Yes. तो आपको लगेगा कि क्या नाम है, ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा है ना. Yes. यहाँ पर उन्होंने लास्ट पैरा जो है ना, ये भागवतम सप्ताह के बारे में भी कहा है. वो जी. उसका पर्पज है उसको कंडेम करने में. हाँ. यही जैसा हम लोग जो है ना, जैसे आई डोंट मीन टू क्या नाम है, मतलब से एनीथिंग क्या नाम है, अजीत सिंह, लेकिन हम लोग नॉट ओनली भागवतम सप्ताह तो फिर भी थोड़ा ढंग की चीज है. अब मैं उल्टी सीधी अब यूट्यूब पे और ये मैगजीन में और ये सारी ये बेस्ट सेलर्स बिक रही है ना आजकल, उसके चक्कर में इतना लोग पड़े हुए अपनी लाइफ को, दे आर जी. वेस्टिंग इट अवे, हम्म. इट अवे. They think that they are becoming very learned. They will be able to talk in the party circles. Are bloody fool. I mean, they don't need to go to the parties at all. But to impress करें मैं these materialists की है ना, वो जी. ये जो है बड़े बड़े लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं. जी. अडानी अडानी और सब के सब फंसे हुए हैं. हाँ. आप समझ गए ना, हम भी फंसे हुए, हम लोग भी हैं, बीच बीच में देखते ही है न्यूज व्यूज, जी. है ना, ऐसा नहीं है. लेकिन भक्ति करते रहने से बड़ा फायदा यही है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वरुण जैसा बता रहे थे, टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स. भक्ति और कर्म है डिवोशनल से जो हम लोग अभी कर रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प अस. हाँ. चलो अब नेक्स्ट 29th कौन पढ़ेगा, तुम्हारे को पढ़ना है. पढ़ेंगे जी. इति राग उपादेश विप्रा जातक कोविदा लब्धा पचितया सर्वे प्रति जगमुः स्वकान ग्रहान. Translation. Thus, those who were expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthir about the future history of this child. Then, being sumptuously remunerated, they all returned to their respective homes. Purport. The Vedas are the storehouse of knowledge, both material and spiritual, but such knowledge aims at perfection of self-realization. In other words, the Vedas are the guides for the civilized man in every respect. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas in the matters of both material needs and spiritual salvation. The specific intelligent class of men who were devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called the Vipras,
or the graduates of the Vedic knowledge. There are different branches of knowledge in the Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for the common man. So the intelligent men, generally known as Brahmanas, took up all the different branches of Vedic knowledge to guide society. Even the Department of Military Education, Dhanurved, was also taken up by such intelligent men, and the Vipras were also teachers of this section of knowledge, as were Dronacharya, Kripacharya, etc. The word Vipra mentioned here is significant. There is a little difference between the Vipras and Brahmanas. The Vipras are those who are expert in Karm Kand or fruitive activities, guiding the society towards fulfilling the material necessities of life, whereas the Brahmanas are the expert in spiritual knowledge of transcendence. This department of knowledge is called Gyan Kand, and above this there is Upanishad Kand. The culmination of Upasana Kand is the devotional service of the Lord Vishnu. And when the Brahmanas achieve perfection, they are called Vaishnavas. Vishnu worship is the highest of the modes of worship. Elevated Brahmanas are Vaishnava engaged in the transcendental loving service of the Lord. And thus, Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service, is very dear to the Vaishnavas. And explained in the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is the mature fruit of Vedic knowledge and is superior subject matter above the three kandas, namely Karma, Gyan, and Upasana. Amongst the Karm Kand experts, the Jatak expert Vipras were good astrologers who could tell all the future history of a born child simply by the astral calculation of the time. Such expert Jatika Vipras were present during the birth of Maharaja Parikshit and his grandfather. Maharaja Yudhishthir awarded the Vipras sufficiently with gold, land, village, grains, and other valuable necessities of life, which also include cows. There is a need of such Vipras in the social structure, and it is the duty of the state to maintain them comfortably, as designed in the Vedic procedure. Such expert Vipras, being sufficiently paid by the state, could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all. पता नहीं ये सब इतना प्रभुपाद जी ने बताया है ना, ये सब ज्ञान बढ़ाने के लिए जी 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 कि किस तरह के विप्रास हैं एंड ऑल दैट. एंड यू सी दिस इज, आई मीन, अब देखा जाए ना, मैं इसको जरा थोड़ा दूसरे एंगल से देख रहा हूँ. युधिष्ठिर महाराज उस टाइम में उन्होंने बच्चे के फ्यूचर के बारे में उनसे पूछा. उन्होंने जी सारा बताया कि ये जो है ना, इसको तक्षक कहा जाएगा, दिस एंड दैट. हाँ इसी तरह से बाकी लोग भी कर रहे होंगे सोसाइटी में, बच्चे के पैदा होने पे इस तरह के विप्र को बुला के कर रहे होंगे. जी लेकिन अब उसके उस टाइम में जो 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 जिनको अपने बच्चे के बारे में पता चल जाता होगा कि भाई इसके बारे में ये इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो दूसरे तरह के ब्राह्मण भी होंगे जो कि क्या नाम है, दूसरे विप्र होंगे जो कि उसका तोड़ भी निकाल देते होंगे, है ना. लेकिन अब वो सब तो नहीं है, खत्म हो गया ना यार. अब आज की डेट में तो इस तरह के कर्म कांडी जो विप्र है ना, वो तो एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं, पूरी बुरी लोगों को, गलीबिल पब्लिक को पैसे बनाने में उनसे लगे हुए हैं, है ना. ये इसलिए एक ही चीज जो है ना, इतना लंबा चौड़ा परपोर्ट जो है ना प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये हम लोगों को केवल इसलिए बताने के लिए कि भैया इन लोगों से बचो, और खाली श्रीमद् भागवतम पढ़ो. और अगर कोई तुम्हारे को ढंग का, मतलब जो जो प्योर डिवोटी मिल जाए, या आपको क्या नाम है कोई बढ़िया गुरु मिल जाए, क्या नाम है, जो कि खुद क्या नाम है रियलाइज्ड है, जो खुद क्या नाम है डिवोटी ऑफ द, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड है, उसकी शरण में चले जाओ बस. इसके अलावा और ये ना, ये सब जो है ना, ये इस टाइप के, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कर्म कांड का. पंडितों द्वारा जो है ना, ये बड़ा तगड़ा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या नाम है, मतलब बहुत लोग जो है ना, पीपल आर फेड अप, क्योंकि क्या है ना, कर्म कांड कर करके
और वो जो है ना लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो बात तो फैल ही रही है ना, हम्म, है ना। तो जी, इसलिए हम लोग को बड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और प्रभुपाद जी ने इसको मेरे ख्याल में इसीलिए बताया कि भैया वैष्णवा क्या है, ब्राह्मण से वैष्णव बनना चाहिए, और कर्म कांड और धनुर्वेद एंड ऑल दैट, तो वो सब बताया है, बहुत बहुत अच्छी बात है। बट बेसिकली उनका पर्पज यही है कि भैया बचो इन लोगों से। हम्म, मतलब ये जो है ना, इट इज हम्म, एब्सोल्युटली क्या नाम है, यूजलेस। हम्म, जैसे उन्होंने एक तरह से मतलब बैकग्राउंड में कंडेम किया ना फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट, वैसे हम्म, यहाँ पर ये एक तरह से वो कह रहे हैं कि भैया अब ये कलयुग के इस फेज में, जहाँ पे राजर्षि थोड़ी है राजा इस देश के, युधिष्ठिर महाराज तो थे, क्या नाम है, ही वॉज लाइक दैट, हम्म, in spite of knowing that his grandson was going to die of an unnatural death, he did nothing, हम्म, because he knew that this child is a devotee of the Supreme Lord हम्म, and I should do nothing. उन्होंने उन ब्राह्मणों को जिन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि ये तक्षक से मारा जाएगा, उसको दान वान दे करके कहा, जाओ भाई, हम्म, यस, इज व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट 30 मैं पढ़ता हूँ, है हम्म, मेरा ही नंबर है ना, तुमने तो पढ़ लिया। हाँ हाँ पटिया। हाँ। स एष लोके को नहीं, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, हम्म, कोई कुछ चीज और कहना चाहो तो, जो मैंने कहा है, ऑल्दो आई सेड सम एक्सट्रीम थिंग्स। जो टेक्स्ट 30, स एष लोके विख्याता परीक्षित दिति यत प्रभु पूर्वम दृष्ट मनु ध्यान परीक्षित नरेश्वे, so his son would become famous हम्म, in the world as Parikshit, examiner, because he would come to examine all human beings in his search after that personality whom he saw before his birth. Thus, he would come to constantly contemplate him. ये भी predict कर रहे हैं भाई ब्राह्मण लोग, है ना। हम्म, Purport: Maharaja Parikshit, fortunate as he was, got the impression of the Lord even in the womb of his mother, and thus his contemplation on the Lord was constantly with him. That is very, very key thing. Once the impression of the transcendence form of the Lord is fixed in one's mind, one can never forget him in any circumstances. ये भी बड़ा बहुत ही गजब का सेंटेंस धीरे जी, है। एक मिनट जरा एक चीज देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि महाराजा परिचित फॉर्चुनेट एंड ही वॉज गॉट द इम्प्रेशन ऑफ लॉर्ड इवन इन द वूम ऑफ हिज मदर। तो क्या हम्म। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तब भी वो सारी चीजें देख रहे थे? तो देख तो लिया ना उन्होंने, जब भगवान आके वो शुरू में देखा एक था अंगूठे के बराबर के रूप में उन्होंने बचाया ना ब्रह्मास्त्र से, हाँ, जी, उन्होंने देख ब्रह्मास्त्र लिया भाई से। भगवान को, ही सॉ हाँ, लॉर्ड। जी, 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 Child Parikshit, after coming out of the womb, was in the habit of examining everyone to see whether he was in the same personality whom he first saw in the womb. But no one could be equal or more attractive than the Lord, and therefore he never accepted anyone. अच्छा भाई, but the Lord was constantly with him by such examination. ये बड़ी important बात है। हम्म, Thus, Maharaja Parikshit was always engaged in the devotional service of the Lord by remembrance. मत हम्म, चित्ता मत बदगत प्राणा, मत चित्ता यही चीज है। हम्म, वो जो है ना मत, कि आपका जो चित्त जो है ना, आपका मतलब बाई हार्ट यू आर ऑल द टाइम थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड, हम्म, बैकग्राउंड में साला कुछ भी चल रहा हो। हम्म, दैट इज द क्या नाम है, ये कहना ना, हमारी ऑलवेज एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड बाय रिमेम्बरेंस। उनका हम्म, चित्त भगवान में ही लगा रहा पूरी जिंदगी, ईच हम्म, एवरी मोमेंट। दैट इज वाई इवन दो कैप्चर्ड बाय माया फॉर ए सेकेंड, फॉर हम्म, कपल ऑफ सेकेंड्स, ही गॉट आउट ऑफ इट इमीडिएटली कि भैया गड़बड़ हो गई है मेरे से। हाँ, और ये जो है श्राप जो है ना, इट इज एन अपॉर्चुनिटी गाइस, है ना। Srila Jiva Goswami remarks in this connection that child, if given an impression of the Lord from his very childhood, certainly becomes a great devotee of the Lord, like Maharaja Parikshit। देखो यार, जीवा गोस्वामी ने यहाँ पर किस टाइप की लर्निंग ली है इस चीज से, हम्म, यू सी। एंड ही श्रीला जीवा गोस्वामी बता रहे हैं पॉपुलेस को, हम्म, कि अगर बच्चे को, आपका जो भी बच्चा है, बचपन से ही अब लॉर्ड कृष्णा में इंटरेस्टेड कर लोगे, तो वो भी महाराजा परीक्षित के लाइन पे क्रम है, मतलब ही विल बिकम सक्सेसफुल, एट द सेम टाइम ही विल रिमेन ए डिवोटी ऑल्सो। हम्म, One may not
be as fortunate as Maharaja Parikshit to have the opportunity to see the Lord in the womb of his mother. But even if he is not so fortunate, he can be made so if the parents of the child desire him to be so. यहाँ पर इसका कितना गजब का रोल बता रहे हैं प्रभुपाद, है ना. देयर इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन माई पर्सनल लाइफ. अब देखो ये बता रहे हैं, देयर इज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन माई पर्सनल लाइफ इन दिस कनेक्शन. माई फादर वॉज ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एंड वेन आई वॉज ओनली 4 or 5 years old, my father gave me a couple of forms of Radha and Krishna. In a peaceful manner, I used to worship these deities with my sister, and I used to imitate the performance of neighboring temple of Radha Govinda. By constantly visiting this neighboring temple and copying the ceremonies in connection with my own deities of play, I developed a natural affinity for the Lord. My father used to observe all the ceremonies befitting my position. Later, these activities are suspended due to my association in the school and college. And I became completely out of practice. But in my youthful days, when I met my spiritual master, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, I again revived my old habit. And the same playful deities became my worshipful deities in proper regulation. This was followed up until I left the family connection, and I am pleased that my generous father gave the first impression, which was developed later into regulative devotional service by his divine grace. Maharaja Prahlad also advised that such impression of godly relations must be impregnated from the beginning of the childhood. Otherwise, one may miss the opportunity of the human form of life, which is very valuable, although it is temporary like others. पूरा तो बता दिया उन्होंने यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल है. आई मीन करम है, मतलब वो जो है ना, लेकिन वो 99.9% जो है पेरेंट्स, वो तो माया के डायरेक्शन में ठेल रहे हैं बच्चों को, और वो जो है उसका नतीजा आप देख रहे हैं. तो ये जो है ना, यहाँ पर तो उन्होंने बता दिया है भाई कि पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, कि उसको कैसे बच्चे को बचपन में ही कृष्णा कॉन्शियस बनाने का है. तो प्रभुपाद जी ने तो अपनी लाइफ के बारे में पूरा बताया नहीं है. उन्होंने तो he owed his this thing to his father only. His spiritual. और तुम लोग खुद ही, you reflect your own life. What effect your parents had on you in your spiritual advancement. You yourself are मतलब this thing, you know. All of us, anyone in this any stage, he can go back to his parents कि उन्होंने उनके पेरेंट्स से उन्होंने क्या सीखा है, और that the remain, उससे बाहर निकलने में थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है. तो यही पे पेरेंट्स का रोल बहुत जबरदस्त है. हाँ वरुण कुछ कह रहे हो? और इसी कंटेक्स्ट में एक और जो श्रीला प्रभुपाद के जो स्टेटमेंट थे वही आई वांटेड टू शेयर. बिल्कुल ये ऐसे ही कहा है श्रीला प्रभुपाद ने एक और जगह कि the parents' first duty is to make their children Krishna conscious, but उनको बनाने से पहले you have to yourself become Krishna conscious. And इसमें भी देखो वही निकल के आ रहा है कि he knew that his father was a pure devotee by his own, and actually इसमें नहीं इन्होंने expand किया, his father was very मतलब कि बहुत ही मतलब he never forced him, he just मतलब kind of इसमें भी कहीं पे भी he didn't force him, it just he himself did it, he himself kept doing it and his son was impacted by it. तो ये बड़ा जरूरी है, ये इम्पैक्ट होना. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट द पेरेंट्स अपने फादर के बारे में जो उन्होंने कहा है ना, वो तो इसीलिए उनकी लीलामृता भी पढ़ना चाहिए किसी को जो एस्पायरिंग डिवोटी है. मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि हिज फादर्स प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज डिवोशनल सर्विस, एंड बाकी जो रिमेनेंट्स था वो था अर्निंग लाइवलीहुड. इस प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज जो सुबह उठते थे तो मतलब प्रभुपाद जब उठते थे तो घंटी बजा के क्रम में पूजा कर रहे होते थे. रात में आके काम से अपने, उनकी क्लॉथ मर्चेंट की दुकान थी, लौट के आकर के फिर वो पूजा करके घंटी बजा करके फिर उसके बाद में भोजन वगैरह ग्रहण करते थे जो भी. तो ही सेड कि हिज प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज डिवोशनल सर्विस.
हम्म, कई और बहुत सारे कई एपिसोड हैं, जैसे कि प्रभुपाद जो है बिकेम मतलब ही वांटेड टू मैरी अगेन, पहली वाइफ से नहीं थे हैप्पी, ही वाज हम्म, नॉट हैप्पी विद हिज फर्स्ट वाइफ, वही मटेरियल एंड ऑल दैट। तो ही वांट, उस जमाने में तो वन कुड मैरी नंबर ऑफ वाइफ्स, हिंदू, हम्म, अंग्रेजों ने नहीं लॉ बनाया था। तो हम्म, क्या नाम है वो, तो जाकर के उन्होंने एक लड़की भी पसंद कर ली, उससे सेरेमनी भी मतलब कर डाली इनिशियल जो है। फादर ने फिर उनको बुला के समझाया कि भाई ये जो है ना, ये ब्लेसिंग है कि तुम्हारी बीवी अनअट्रैक्टिव है, इट इज हम्म, ब्लेसिंग फॉर यू, हम्म, बिकॉज दैट इज वन वन श्योर वे ऑफ बिकमिंग डिवोटी। क्योंकि वो हम्म, इतना तो जान ही गए थे कि उनका मतलब प्रभुपाद जो है ना, मतलब ही इज। तो उन्होंने उनको समझाया कि भैया वो जो तुम्हारी बीवी अनअट्रैक्टिव है, दैट इज ए ब्लेसिंग। कौन बाप हम्म, अपने आप को उनको समझाएगा। उस हम्म, जमाने में ही वॉज सो, मतलब वो उनको चाहते तो मतलब उस समय इंग्लैंड में भेज के वकालत पढ़वाना जो ना सबसे बड़ी बात होती थी। ये हम्म, के पट्टे नेहरू और गांधी वगैरह के नाम जितने भी थे ना, ये गए थे इसी काम के लिए। हम्म, आज अंग्रेजों को वहां से बार एट लॉ बन के आए हैं भाई, जो बार एट लॉ वो मतलब कानून के दामाद बन के आए वो वहां से ये, है ना। तो ये जो, लेकिन उसने प्रभुपाद के फादर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा भैया मैं नहीं भेजूंगा इसको, क्या मैं, हम्म, बिकॉज आई वांट हिम टू बिकम ए डिवोटी। हम्म, एंड टुडे हु रिमेम्बर्स यार, ही इज, मतलब इवन मटेरियल प्लेन पे आज की डेट में 700-800 टेम्पल ऐसे हैं कि जिसके अंदर मंदिर में घुल के सबसे पहले दंडवत लोग प्रभुपाद को करते हैं। हम्म, सबसे पहले दंडवत, पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था यार, ये इस आदमी की बस के सामने क्यों लोग दंडवत कर रहे हैं। हम्म, एंड आई रेड हिज लीला मृता, आई वाज ए डिफरेंट मैन। हम्म, आई न्यू व्हाट सेक्रीफाइस इज, व्हाट तपस्या इज। जैसे वरुण कहते हैं ना बार बार कि तपस्या के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा हाँ, तपस्या के बिना तो ना तो इस जन्म में यू कैन गेट एनीथिंग, व्हाट टू टॉक ऑफ द नेक्स्ट लाइफ, हम्म, है ना। तो अभी जी, यही खत्म करेंगे आज, है ना, जी, है ना, फिर जी, कर है नेक्स्ट टाइम, है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं हम लोग वो कर लेते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू, थैंक यू।